Assalamualaikum students, today we are going to start the work on countdown book 4. So let's take out the page that we will start today, page number 54. First of all, you have to write date 3/9/2020, classwork and Thursday. Now let's start the topic that we are going to do today. Comparing fractions with different denominators. अब इसमें क्या करना है, आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है जिनका डिनोमिनेटर में नंबर डिफरेंट होगा. डिनोमिनेटर वो नंबर होता है जो कि नीचे वाली टर्म होती है. ठीक है, अब ज़रा आप गौर से देखें. Look at this pair of unlike fractions 3/4 and 5/8. Their denominators are different. इनके denominators different हैं, and so are their numerators, और numerators भी different हैं. How can we compare them? हम उनको अब compare कैसे करेंगे? That's a difficult thing for you guys because ये आपके लिए थोड़ी नहीं है. मैं अब आपको guide करती हूँ. Let us look more closely to the two denominators, that is 3/4 and 5/8. We know that when we are going to take LCM of these two numbers 4 and 8, we will get the answer 8. ठीक है, जब 4 और 8 का इवन नंबर्स है ना, तो जो बड़ा नंबर होता है उसमें क्योंकि दोनों किसी एक टर्म से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका जो बड़ा नंबर होगा वही इसका LCM कहलाएगा. राइट, वी नो दैट द LCM इज 4 and 8 is 8. 4 और 8 का LCM क्या है? 8. So let us change 3/4 into an equivalent fraction with denominator 8. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 3/4, 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 2s are 8. ठीक है, तो हमने 2 और 2 दोनों टर्म मिला दी, मल्टीप्लाई कर दी. 3 2s are 6, 4 2s are 8. Now 6/8 and 5/8 is easily we can compare these two fractions because 8 and 8 is common. 6 और 5 का आप पूछेंगे तो दिस फ्रैक्शन इज बिगर. ठीक है, 6 बड़ी फ्रैक्शन है. ठीक है, तो दिस होल फ्रैक्शन इज बिगर. Here 8 is the common denominator of two fractions. ये common हो गया. Right, to compare like fractions, compare the numerators. The fraction with the greater numerator is the greater fraction. ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होती है फ्रैक्शन भी. राइट, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट पेज 155. Page 55. 3/9/2020, classwork and Thursday. When we want to find the common denominator of unlike fractions होती हैं जो नीचे वाले terms same नहीं होती. We simply think of the LCM of the denominators we want to change. For example, look at this one. 3/4 and 2/3. क्या है? 4 और 3 का LCM. ठीक है, अब ये सिंपल नंबर्स हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2. ठीक है, और 3 1s are 3. तो 2 2s are 4 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा. 3 4s are 12. तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12. सो एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12. देयरफॉर कॉमन डिनोमिनेटर इज 12. इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन क्या आएगा? 12 आएगा. कैसे? मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 12. व्हाट वी विल डू हेयर, वी विल लुक एट द नंबर्स बोथ. हम लोग दोनों नंबर्स को देखते हैं. 4 3s are 12, 9 और 3 3s are 9. इनके साथ ना हम लोग वो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे जो दोनों को कॉमन करने के लिए 12 बन जाए. 4 3s are 12 हो जाएगा तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई हो गया. 3 4s are 12 हो गया तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई हो गया. अब वही चीज़ यहाँ इन्होंने करके दिखा दी है. 4 3s are 12 नीचे आ गया, 3 3s are 9. ऐसे ही 2 4s are 8 और 3 4s are 12. सो द फ्रैक्शंस बिकम 3/4 की जगह आ गई 9/12 और 2/3 की जगह आ गई 8/12. 9/12 and 8/12 are like fractions and also equivalent fractions. How they are equivalent? Because नीचे इनका जो नंबर है वो 12 कॉमन हो गया है. ठीक है, with the same denominator we can now compare our like fractions. ठीक है, अब हम इनको easily compare कर सकते हैं. We will just compare the fractions we have got now. जो हमने fractions खुद बनाई हैं, टर्म बना के नीचे कॉमन किया है, अब उनसे कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 12 and 12 are common and we will compare these two numbers 9 and 8 in the denominator place. 9 is greater, so this whole fraction is greater and it is linked to किससे थी ये? 3/4 से, और ये इससे है. ठीक है, तो it means 3/4 is greater than 2/3. Rule: in unlike fractions the LCM of the denominators is least common denominator. सबसे छोटा होता है. ठीक है, LCM उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. क्या मतलब कि जो उनका सबसे छोटा नंबर कॉमन आए, जैसे उनके टेबल्स पढ़े जाएं और सबसे पहले जो नंबर कॉमन आता है वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लें.
Ordering fractions, arranging fractions in ascending and descending order. To arrange fractions in descending and descending order, we find equivalent fractions of all given fractions with a common denominator, then arrange them in the required order by comparing, right? अब क्या करना है, ascending और descending order में हमने क्या करना है, equivalent fractions की जो है we will find इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ऑल गिवन नंबर, हमने उनकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है एंड कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है और फिर उनको अरेंज करना है उनकी सीक्वेंस में. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. 3/5, 7/10, 9/20. ठीक है. ईजीएस्ट वे क्या है, इन सब कैल्शियम लिया, 20 इन कैल्शियम है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या आ गया 20. तो हमने क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 20 आंसर है. 3/5 है, 5 4 20 होता है, दोनों से टर्म से 4 मल्टीप्लाई हुआ, 3 4 12 और 5 4 20, राइट. ये इसकी फ्रैक्शन बन गई. फिर 7/10, 10 2 20 होता है. पहले नीचे डिनोमिनेटर को हमेशा देखते हैं ताकि नीचे वाला नंबर चेंज हो और कॉमन बने, फिर वही नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है. 10 2 20 है, यही 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया 7 के साथ, 7 2 14, 14/20 इसके साथ लिंक हो गई. 9/20 विल रिमेन द सेम बिकॉज ऑलरेडी नीचे 20 ही है. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज दीज फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ द आंसर्स. ये जो हमने आंसर खुद बनाए हैं, नीचे फ्रैक्शंस कॉमन किए हैं 20 वाली. पहले हमने लिखी सबसे, इनको किस में करना है, इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने करके दिखाया. ठीक है. पहले हमने ये फ्रैक्शंस लिखी 12/20, 14/20 या 9/20, ये हमने लिख ली. अब क्या कह रहे हैं, इसको लोएस्ट से हाईएस्ट में लेके जाएं, मतलब कि असेंडिंग में अरेंज करें. तो 9/20, 12/20 और 14, 20 20 20 कॉमन है, ऊपर 14 12 और 9, सबसे छोटा 9, 9/20 पहले आया. ठीक है, जो कि ऑलरेडी वही था. 12/20, 12/20 किसका बना था, 3/5, सेकंड पे 3/5 आ गया. और 14/20 7/10 की फ्रैक्शंस बनी थी. ठीक है. तो 7/20 थर्ड पे 10 थर्ड पे आ गया. इसी तरह इन नंबर्स को देखते हुए हम डिसेंडिंग करेंगे. ये ऑपोजिट 14/20, 12/20 और 9/20 कंपेयर किया, तो 7/10, 3/5 और 9/20 उसी तरह हमने लिखा. क्योंकि 7/10 जो है वो सबसे एंड में आ रहा है, ये सबसे छोटा बड़ा था तो ये एंड में आ रहा है. ये रिवर्स होके उल्टा हो जाएगा, 7/10, 3/5, 9/20. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड 2/3, 4/5 एंड 1/2 सेम तरीके से वही तरीके से सॉल्व किया हुआ है. उनकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाई हैं और फिर नंबर को इनके साथ लिंक किया हुआ है. ठीक है. देख लें, अगर ये आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया है, फिर डिसेंडिंग में किया है. इन फ्रैक्शंस के साथ कंपेयर करके जो आंसर्स हम निकालते हैं ना, नीचे वाली टर्म का एलसीएम निकाल के और फिर देखते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन इक्वल है, उसके हेल्प लेके फिर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी ईजी. आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर घर में करनी है रफ नोटबुक पे, ताकि आपका इसमें मुश्किल ना हो नेक्स्ट सॉल्व करने में क्वेश्चंस. नेक्स्ट पेज 57 पेज. Page number 57, 3/9/2020 classwork and Thursday. Simplification of fractions to the lowest term. Lowest term मतलब cutting करना. The fractions 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 are all equivalent fractions, but the fraction 1/2 is in its simplest form. For example, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Cutting करके यही आंसर आएगा. 3 1s are 3, 2 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8. देखें सबका 1/2 आता है अगर लोएस्ट फॉर्म लेके आते हैं तो, राइट. बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी 1/2. इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी मेड एनी स्मॉलर. इनको और कटिंग नहीं की जा सकती, तो ऑलरेडी ये सिंपल फॉर्म में. जिस नंबर की कटिंग नहीं होती वो उसकी सिंपल फॉर्म में फ्रैक्शन होती है, राइट. ये आपने याद रखना है. और जिन फ्रैक्शंस की कटिंग हो सकती है एक ही टेबल से, वो आपकी होती है सिंपलेस्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल 5/10 है, अगर 1/2 और 5/10 को कंपेयर करें तो 1/2 तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी है. इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, कटिंग करेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10. ठीक है. तो ये 1/2 बन गई. A fraction where the numerator and denominator cannot be reduced any further is said to be fraction in its lowest form. ये आपको वही बात जो मैंने अभी समझाई है, इंग्लिश में लिख दी है. To find out whether a fraction in its lowest terms, remember the common factor HCF and test the test of divisibility. डिवाइड करने के जो रूल्स थे वो आपने याद रखने हैं. ठीक है. और HCF आपको पता है कैसे करते हैं. एग्जाम्पल, रिड्यूस 40/72 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म. इन्होंने क्या किया, अब 40 और 72 को देखें, ये टर्म्स वही चीज़ है जो मैं बताने लगी हूँ. दोनों चीज़ों में आपको आंसर बताएंगे. By the test of divisibility, we establish that the numerator and denominator can be divided by 8. दोनों से 8 से डिवाइड हो सकते हैं. By prime factorization, we know that HCF of 40 and 72 is 8. ठीक है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 8 बनता है ना जब HCF निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे. ठीक है.
40 को 8 से डिवाइड किया, 8 5 ज़र 40 आ गया, 8 9 ज़र 72। दोनों नंबर्स 8 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 8 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो आपको समझ आ रही है, देख लें इसे। नाउ दिस देयरफॉर 5/9 इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म। तो इसकी लोएस्ट टर्म क्या है? 5/9। इसकी लोएस्ट टर्म 5/9 है। कोई 3A फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये A B C D E पार्ट आपने खुद पढ़ के खुद सॉल्व करने हैं। इसमें कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझसे पूछ लें। ऑलरेडी आंसर मैंने अब सोल्व करके लिखे हैं, कोई गलत है तो आपका गलत होता है तो मुझसे डिस्कस कर लें। B पार्ट्स 2 क्वेश्चन 3 भी आपने खुद करना है। इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 हम नोटबुक पे करेंगे, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।